وائس چیئرمین انجینئرنگ کونسل سندھ زون مختار شیخ نے انجینئرز کو خوشخبری سنا دی. بولے الیکشن جیت کر انجینئرز کو ہیلتھ انشورنس اور ہاؤسنگ اسکیم دیں گے. ڈی ایچ اے میں انجینئرز کے لیے آئی ٹی ٹاور اور اکیڈمی بھی بنائیں گے. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. انجینئرنگ کونسل کے انتخابات کا دنگل، امیدواروں کی جیت کے لیے جتن. وائس چیئرمین انجینئرنگ کونسل سندھ زون مختار شیخ نے سٹی 21 سے گفتگو میں کہا کہ انجینئرز کو ہیلتھ انشورنس اور ہاؤسنگ اسکیم کے مسائل ہیں جن کو حل کریں گے. ڈی ایچ اے میں انجینئرز کے لیے آئی ٹی ٹاور اور اکیڈمی بنائیں گے. اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ بے روزگاری کا ہے انجینئرز کے. اس کے لیے ہم نے کافی جو ہے پریکاشنز لیے ہیں. جیسے ابھی ہم نے ینگ انجینئرز کے لیے انٹرنشپ کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارے انجینئرز کے جو ہے ایشوز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے لیے کوئی ہیلتھ کا جو ہے انشورنس نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ہاؤسنگ کالونیز کی کوئی اسکیم نہیں ہے، یا ان کے لیے کوئی انجینئرز کلب نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اکیڈمی نہیں ہے. اور اس کے لیے ہم نے ابھی ایک پلاٹ دیا ہے ڈی ایچ اے سٹی میں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے ہم انجینئرنگ اکیڈمی بنائیں گے. سابق چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل سید عبد القادر نے سب سے بڑا مسئلہ ینگ انجینئرز کی بے روزگاری کو قرار دے دیا. بولے جیت کر نوکریوں کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. انجینئرز کا میجر پرابلم جو ہے سب سے زیادہ ینگ انجینئرز کی بے روزگاری کا ہے. اس کو ہم ایڈریس کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے اور گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں گے کہ کچھ پالیسیز ایسی بنائی جائیں، کیونکہ پی سی ایک ریگولیٹری باڈی ہے. ہم کسی کو جاب نہیں دے سکتے مگر ہم صرف اپرچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. دوسری جانب ینگ انجینئرز کا کہنا ہے کہ وہ اسی پینل کے حق میں ووٹ ڈالیں گے جو انہیں معیار کی سہولیات اور نوکریوں کے حصول میں آسانی فراہم کر کے دے گا. کیمرامین شازیب کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. اب آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ نے وزیر اعلیٰ سے بجلی کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کر دیا. کامران خان ٹسوری کہتے ہیں کہ ریلیف پیکج کے لیے آج ہی وزیر اعلیٰ کو خط لکھوں گا. سیلاب متاثرین کے لیے گورنر ہاؤس میں خصوصی سیل قائم کر دیا. پہلے مرحلے میں 10,000 سے زائد راشن بیگز متاثرین کے لیے روانہ کر رہے ہیں. تفصیلات خورشید الرحمان کی اس رپورٹ میں. بھی بجلی کی قیمت میں کمی کے حامی نکلے. گورنر ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کامران خان ٹسوری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم بی بی کی کارکردگی قابل ستائش ہے. سندھ سرکار کو بھی اپنے بجٹ سے بجلی کے نرخوں میں کمی لانی چاہیے. مریم بی بی کا جو ٹویٹ ہے وہ بات ٹھیک ہے کہ ہر صوبے کے پاس اپنے بجٹ ہوتے ہیں جو وہ اسے استعمال کر سکتا ہے اپنی عوام کے لیے. تو میں وزیر اعلیٰ سندھ کو ابھی یہ خط لکھ رہا ہوں کہ آپ بھی کوئی بجٹ مختص کریں عوام کے لیے اس حوالے سے، اور سندھ میں بھی 14 روپے یونٹ کی کمی کی جائے. کامران خان ٹسوری نے کہا کہ صوبے کو ان دنوں موسلا دھار بارشوں کا سامنا ہے. متاثرین کے لیے گورنر ہاؤس میں سیل بنا دیا گیا ہے. میں نے بھی فوری طور پر گورنر ہاؤس میں اس صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک سیل کا قیام کر دیا ہے، اور میں نے چیئرمین صاحب کو بھی یہ کہا ہے کہ اگر کہیں وہاں راشن کی ضرورت ہو تو ہم فوری طور پہ 10,000 راشن کے ڈبے یہاں سے روانہ کر سکتے ہیں. گورنر سندھ نے کہا ہر ایونٹ کی طرح 6 ستمبر کو بھی گورنر ہاؤس میں شایان شان انداز میں منائیں گے جس میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں گے. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21. کراچی چیمبر نے سندھ کے عوام کے لیے بجلی کی بلوں میں ریلیف مانگ لیا. کراچی چیمبر نے بجلی بلوں میں 14 روپے فی یونٹ ریلیف دیے جانے کا مطالبہ کر دیا. جی ہاں، کراچی چیمبر نے سندھ کے عوام کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف مانگا ہے اور کراچی چیمبر نے بجلی بلوں میں 14 روپے فی یونٹ ریلیف دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے. اب آپ کو بتائیں کہ صدر آصف علی زرداری نے عوام سے اپیل کی ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں سے ایک ہے. عوام مانسون شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. صدر آصف علی زرداری نے بلاول ہاؤس کراچی میں قومی شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودا لگایا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے قومی سطح پر جنگلات کی شرح میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں اور گلوبل وارمنگ میں سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں سے ایک ہے. عوام مانسون شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. عوام موسمیاتی تبدیلی، عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے منفی اثرات کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں.
अब बात करेंगे शहर कैद के मौसम की। तो कराची में गहरे बादलों का राज है, जबकि सुबह से मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची में हल्की से तेज़ बारिश का इम्कान है और शहर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम अब भी मौजूद है। आयमा खान की रिपोर्ट देखें। कराची में मानसून के 5वें स्पेल के तहत मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। दिन भर मुख्तलिफ इलाकों में दरमियानी दर्जे की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। शहर में सबसे ज्यादा बारिश तुरजानी में 70.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। औरंगी टाउन में 26 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 7.5 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर के दीगर इलाकों में बादलों के डेरे और तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी बदौलत मौसम खुशगवार हो गया, जबकि कई इलाकों में रहमत जहमत बन गई। न्यू कराची में नाला उबलने से गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया। नॉर्थ कराची, सुरजानी, गुलशन मेमार, फेडरल बी एरिया, सोराब गोट और गिरदो नवा में तेज बारिश हुई। आयमा खान, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध सूबे को माहौल दोस्त बनाने के लिए सरगर्म। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास, नासिर हुसैन शाह, नजमे आलम, मुर्तज़ा वहाब, डीजी रेंजर समेत दीगर मौजूद। मुराद अली शाह ने प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। कहा कि अवाम की सहूलियात के लिए तमाम ज़राए बरोकार लाई जाएंगी। हाउस में प्लास्टिक की बोतलों पर पाबंदी लगा दी गई। मुराद अली शाह ने प्लास्टिक के इस्तेमाल तर्क करने की हिदायत कर दी। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। इजलास में पानी की बोतलों की जगह शीशे के जग रखे गए हैं। इजलास के दौरान वजीर आला ने बताया कि माहौल की बेहतरी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। अवाम की सहूलियात के लिए तमाम जराए बरोए कार लाए जाएंगे। वज़रा की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आला ने महकमा आपाशी को निगरानी की हिदायत कर दी। DGPDMA सलमान शाह ने हर जगह मशीनरी पहुंचाने का दावा किया। वजीर बल्दियात सईद गनी का कहना था कि महकमा बल्दियात हर वक्त मुतहर्रिक है, सूबे भर के बल्दियाती नुमाइंदों से राब्ते में है। हालिया बारिशों ने शहर की सड़कों को खंडरात में तब्दील कर दिया। नॉर्थ नासिमाबाद टाउन की हैदरी मार्केट की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। कराची में बारिशें सड़कों की तबाही का सबब बन गईं। इंतजामिया शाहराहों की बहाली के लिए मुतहर्रिक। नॉर्थ नासिमाबाद टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान की हिदायत पर ब्लॉक एच और दरमियानी सड़क को काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। देखें, ये इस वक्त हम सिर्फ लिविंग रेडिसिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये बारिशों के दौरान होता है। अब इस बारिश के दौरान तो कोई रोड वगैरह नहीं बनाई जा सकती। सिर्फ आवाम की इसको सहूलत ये दे रहे हैं कि वो आराम से उनकी गाड़ियाँ निकल सके, मोटरेबल हो जाए लोग। सड़क के दोनों अतराफ 2500 दुकानों और शोरूम्स पर मुश्तमिल कराची की दूसरी बड़ी हैदरी मार्केट है। दुकानदार रहनुमा बोले, सड़क गढ़ों में तब्दील थी, जिसे फौरी तामीर करने की जरूरत है। अहमियत ये जनाब कि तकरीबन 2500 से ज़्यादा दुकानें हैदरी मार्केट में, सेकंड लार्जेस्ट कराची की ये मार्केट है। और सिर्फ ये कराची की मार्केट नहीं, बल्कि ओवरसीज जितने भी पाकिस्तानी जब पाकिस्तान आते हैं, कराची आते हैं, तो लाजमी इस मार्केट का चक्कर लगाते हैं। हालिया मानसून सीजन के दौरान शहर भर में सड़कों का नेटवर्क मुतासिर हुआ है, जिसकी दोबारा पायदार तामीर की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, जिला वस्ती की 5 टाउन हुकूमतों के मुलाजमीन 3 अरब रुपए के वाजिबात से महरूम। लेबर विंग फंक्शनल लीग ने 7000 मुलाजमीन के वाजिबात के लिए जिद्दोजहद का ऐलान कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। 2016 से 2024 आ गया, मगर 8 सालों में जिला वस्ती की 5 टाउन हुकूमत की माहाना तनख्वाहों के वाजिबात अदा ना किए जा सके। फंक्शनल लीग लेबर विंग के सीनियर नायब सदर सैयद नजम रिजवी बोले, साबिक चेयरमैन ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया, जबकि मौजूदा नुमाइंदे तो इस मामले पर चुप साधे हुए हैं। अदायगी के लिए अदालत जाएंगे। देखें, 8 साल से ये चल रहा है। पिछले उसमें भी लॉलीपॉप मिला हमें कि जाते जाते हम सारे मामला जो है वो हल करके जाएंगे। अभी जो आए हैं चेयरमैन बल्दियाती उम्मीदवार, उन्होंने भी जो है यकीन दिलवाई, मगर अब हमें लगता है कि ये भी हमें जो है वो लॉलीपॉप दे रहे हैं। ठीक है, अब हम आखिरी दफ़ा इनसे हमने रिक्वेस्ट की है, ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अदालत के दरवाजे खटखटाने जा रहे हैं। महंगाई का रोना रोते मुलाजमीन का शिकवा था कि सिंध हुकूमत इनसे सौतेली माँ का सुलूक रखे हुए है। देखिए, बल्दियात का मसला ये है कि सिंध गवर्नमेंट के जो है 50 के करीब डिपार्टमेंट है। बल्दियात जो है सबसे ज़्यादा काम करके देने वाला डिपार्टमेंट है, लेकिन उसके साथ फिर सुतेली माँ की तरह सलूक किया जाता है। फंक्शनल लीग लेबर विंग के नजम रिजवी ने इन अदायगियों के लिए वजीर आला सिंध से बेल आउट पैकेज फराहम करने का मुतालबा भी किया है। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
शहर कायद में बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। मार्टिन क्वार्टर्स के मकीनों को सिर्फ 2 रोज़ के लिए इलाके को बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में शामिल किया गया, जिसके बाद 12 घंटों की लोड शेडिंग ने आवाम को अजियत में डाल दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। क्वार्टर में 12 घंटों की लोड शेडिंग, इलाका मकीन परेशान। मकीन कहते हैं कि इलाके को सिर्फ 2 रोज के लिए बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके में शामिल किया गया, जिसके बाद दोबारा लोड शेडिंग ने डेरे डाल लिए, जिसकी वजह से घरेलू अमूर मुतासिर होते हैं और पानी की किल्लत संगीन हो जाती है। बिजली की लोड शेडिंग से ज्यादा बिल आते हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोड शेडिंग जब होती है तो लाजिम पानी का मसला है, पानी की मोटरों से ही आता है, वैसे नॉर्मल तो नलों में पानी आता ही नहीं है एक अरसे से। और 2000 बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके यूनिफॉर्म है, इस्त्री होना है, कोई बंदा ऑफिस जा रहा है, उसका यूनिफॉर्म है। अब या तो रात को 12 बजे करके बैठो तो 12 बजे 12:30 बजे लाइट आती है। लोड शेडिंग है, 2 मीटर लगाए में देखें, 1 मीटर ये लगा हुआ, 1 मीटर वो लगा एक ही घर में, फिर भी लाइट जो है वो प्रॉपर नहीं मिलती। बिजली के बिल जो है ऐसे आते हैं कि ये समझेंगे बिल्कुल नाजायज़ ज़्यादती है ये आवाम के साथ ना, यानी जितनी लोगों की कमाई नहीं है उससे ज़्यादा तो उनके पास बिल आ रहे हैं। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 10 घंटों का है। शेरशाह, सरजानी टाउन, कोरंगी, चकड़ा गोड, राम स्वामी गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, श्री जिना, मंगो पीर समेत मुख्तलिफ इलाके लोड शेडिंग से मुतासिर हैं। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में शहरी बिजली गैस के बेलतातुल फराहमी को तरस के पीराबाद, रामसवामी गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, शेरशाह, मंगोपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस मसाइल भी बरकरार हैं। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। बिजली गैस की बुनियादी सहूलतों के मसाइल शहरियों के लिए अजियत बन गए। शहर में 8 घंटों से ज़्यादा की गैस की लोड शेडिंग और मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटों की बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। शहरियों का कहना है कि सुई सडन रात में कब्ल वक्त ही गैस बंद कर देती है, जबकि बिजली की आंख मचोली से मुश्किलात बढ़ जाती है। बिजली गैस के बिलों ने माशी मुश्किलात बढ़ा दी है। क्या करेंगे, अब हुकूमत तो अभी जो दिल करे वो करती है, बस महंगाई वैसे बढ़ा के रखी है पहले से, और लाइट भी अभी नहीं है, गैस भी नहीं है, बैठे हुए अभी क्या कर सकते। सुबह 6 बजे आते हैं और 9 बजे चले जाते हैं। 10 बजे का तो उनका नाम है और 10 बजे तक 10 बजे का नाम है, 9 बजे चले जाते हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ गैस फील्ड से SAGC के सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना होता है। तर्जुमान सुसदन के मुताबिक लाइन पैक को बेहतर बनाने समेत रोजाना की बुनियादों पर दीगर इकदाम किए जाते हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। महंगाई के बाइस फूलों की सनत मुतासर होने लगी। सिंध फ्लावर एसोसिएशन के सदर सुहेल अकबर कुरैशी कहते हैं कि महंगाई की वजह से गाहक भी कम आने हैं। हुकूमती सतह पर फूलों की सनत पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। हर तरफ खुशबुओं की महक। यह है 3 अट्टी पर कायम फूलों की मार्केट, जो अनवाओ अक़साम के फूलों से सजी हुई है। मुल्की मईशत की गिरावट की वजह से फूलों की सनत को भी खतरात लाक हो गए। सिंध फ्लावर एसोसिएशन के सदर सुहेल अकबर कुरैशी कहते हैं कि हुकूमती सतह पर फूलों की सनत पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। एक्सपोर्ट के लिए असल बात है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट जो है वो उसकी हमारी गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। ये हज़ारों टन होता है, उसकी एक्सपोर्ट में जो प्रॉब्लम आती है, मतलब यहाँ बिक रहा है 100 रुपये किलो, एक्सपोर्ट की कीमत है 50 रुपये किलो, समझे आप? ये मसले मसाइल हैं। फूलों की मार्केट में दीगर दुकानदारों ने कहा महंगाई की वजह से कारोबार नहीं रहा। महंगाई की वजह से दुकान ग्राहक जो ना आजकल कम हो गया है, जिसकी वजह से माल हमारा कम फरोख्त हो रहा है और बहुत महंगाई हो रही है। अपडेट हो आप समझ लो कुछ ही नहीं है, वरना पहले तो मार्केट बड़ी गेमा गेमी रहती थी, अब तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है काम सब। फूलों की सनत के हवाले से हुकूमत को कोई मजबूत हिकमत अमली बनाने की जरूरत है ताकि फूलों की सनत को वसअत मिल सके। कैमरामैन आगर रफीक के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। कराची चैम्बर ने भी ताजर दो स्कीम की मुखालफत कर दी। ताजर दो स्कीम को 3 माह के लिए मौखर करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन की रिपोर्ट में। ताजिर दोस्त स्कीम पर ताजिर बिरादरी का एहतिजाज। कराची चैम्बर भी ताजिरों के साथ। चैम्बर ने ताजिर दोस्त स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया।
टैक्स दुकानदारों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। ताजिरों को भेजे गए नोटिस वापस लिए जाएं। यकीन दहानी कराई गई थी कि 1200 रुपए तक का टैक्स लिया जाएगा। आजकल मार्केटों के अंदर 60,000 रुपए के नोटिस इशू हो रहे हैं, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे वो अनरजिस्टर हो, जबकि हमें ये कहा गया था कि दुकान जो छोटी दुकान के लिए 1000-1200 रुपए का नोटिस आएगी, लेकिन हर एक को 60,000 रुपए के नोटिस आए। इफ्तिखार शेख बोले, ताजिर दोस्त स्कीम के तरीक़ेकार को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत इस स्कीम को 3 माह के लिए मौखर करे। हम इस ताजिर दोस्त स्कीम के इस तरीक़ेकार को मुस्तरद करते हैं और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको फौरी तौर पर रोका जाए और ये जो नोटिस भेजे हैं इसे वापस लिया जाए और अहकाम जारी किए जाएं कि इसको 2-3 महीने के लिए मौखर किया जाए और हमारे साथ बैठकर इसको वापस सेटल किया जाए। कराची चैम्बर का कहना है कि भारी टैक्सेस के नाजायज मुतालबे के बिल्कुल खिलाफ हैं। वजीर आजम दुकानदारों को दरपेश मुश्किलात का इदराक करें। काविश मेमन, सिटी 21। छाती के कैंसर की बरवक्त तशखीस जिंदगी की हिफाजत। ख़वातीन में तेज़ी से फैलने वाले मर्ज़ की तहकीक का दिन। माहिरीन के मुताबिक जल्द तशखीस से ये काबिल इलाज मर्ज़ है। नम्रा रियासत की रिपोर्ट देखें। ख़वातीन में तेज़ी से फैलने वाले मर्ज़ की तहकीक का दिन। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में छाती के कैंसर की तहकीक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सालाना तकरीबन 2.3 मिलियन नए केसेस सामने आते हैं। इस तरह छाती का कैंसर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तशख़ीस शुदा कैंसर है, लेकिन अगर जल्द तहकीक हो जाए तो यह काबिल इलाज है। इब्तदाई अलामात जैसे घुटलियाँ और दर्द वगैरह हैं। इन नताइज का ताल्लुक मर्ज़ की अलामात के बारे में ज़्यादा आगाही न होने और मरीजों का बैक वक्त दीगर बीमारियों में मुब्तला होने से भी हो सकता है। पेशेंट को खुद अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप ये कर सकते हैं कि आप महीने में 2 महीने में 3 महीने में अपनी खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करें। एग्जामिनेशन के बाद ये कि अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, कोई चीज़ आप फाइंड आउट करते हैं कि कोई लम्प मिल रहा है, कोई मास आपको फील हो रहा है या आपको पेन फील हो रहा है या स्वेलिंग वगैरह है, तो आप ये फर्दर अपने डॉक्टर से करीबी जो है उससे कंसल्ट करें ताकि आपको फर्दर हम लोग चीज़ों के बारे में आगाह कर सकें। एक तहकीक में दुनिया के 81 ममालिक में तकरीबन 20 लाख ख़वातीन का जायजा लिया गया, जिससे ये सामने आया कि मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और इलाकों के हालात में नुमाया फ़र्क है। छाती का कैंसर दुनिया भर में सबसे आम किस्म है और ख़वातीन की कैंसर से अमवात की भी यही बड़ी वजह है। कैमरा टीम के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21।